Hello and welcome to N6 TV Canada. You're watching Match Point with your host Hamza Elahi, and today we're bringing you the special Match Point episode. And we're just hours away from India versus New Zealand, the first semifinal at Wankhede. We have our panelists with us. Dr. Adnan Khan is joining us from Toronto. He's sports analyst and world renowned. Gurpreet Purbaji, sportscaster from Toronto, and Rangaji is joining us from Singapore. Let's move towards our headlines for today. और जी एक ही हेडलाइन है मेरे पास कि कुछ ही घंटों में तकरीबन टोरंटो टाइम में सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं, जिसके बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्टार्ट हो जाएगा और हम देखते हैं कि डॉक्टर अदनान हमारे पास कौन-कौन सी हेडलाइंस लेके आते हैं। ऑफ टू यू डॉक्टर अदनान। Ji, thank you, Hamza, and welcome to Gurpreet ji. Welcome to Ranga ji, all the way from Toronto and Singapore. And Hamza, thanks for giving me the opportunity to tell the headlines. So, less than 4 hours to go for a rematch of the 2019 World Cup semi-finals, and time to remove the nightmares of 2019. It's the time to settle the score. Team India is one step closer for celebrating the ultimate legacy of the international cricket. But आई थिंक हमारी प्रोडक्शन टीम जो है वो बट के ऊपर कुछ भूल रही है. बट इंडिया कीप remembering this thing that India have not beaten New Zealand in a knockout game in an ICC event. So this is one of the major headlines. And now moving to the next headlines, that the former Sri Lankan captain Arjuna Ranatunga said that Jay Shah is running Sri Lankan cricket. बड़ा जबरदस्त बयान था. उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट इज बीइंग ruined because of the pressure from the Jay Shah, and one man in India is the brain behind the ruining of the Sri Lankan cricket. बहुत बड़ा बयान था राणा टोंगा की जानब से. इसकी गहराई में भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है. Major ICC tournament wins in the last 10 years for the Asian team. Sri Lanka, Pakistan, India and Afghanistan. Sri Lanka 1, Pakistan 1, India 0, Afghanistan 0. देखना यह है कि क्या इंडिया इस पे अपनी मोहर साबित करेगा और इसको रजिस्टर करेगा कि नहीं करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट इन द लास्ट 2 वीक्स काफी रोलर कोस्टर रहा. एंड जमाम उल हक रिजाइंस एज द पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर. Pakistan knocked out in the group stage of the World Cup 2023. Morni Morkel resigns as the Pakistan bowling coach now, and the PCB has fired the entire selection committee. So one of the new outcomes of the Pakistan PCB and the Pakistan cricket right now. Virat Kohli, the brain behind the Indian batting lineup, needs 80 runs to break the Sachin Tendulkar's record for the most runs in the single edition of the World Cup. Yet fingers are crossed that he will be doing this or not. Mitch Marsh is likely to captain Team Australia in the T20 World Cup 2024. And the next news is about the ICC, which confirms that there is a reserved day for the semi-final and the final if the rain comes in between. One very big news for the fans around the globe, for the soccer fans in the India and all around the globe. David Beckham, one of the star-studded lineup, once with the Manchester United and once with the Real Madrid, and once in the lifetime when he was playing with the England team. David Beckham has landed in India to watch the India versus न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच एट वानखेड़े. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो वानखेड़े पे उन्होंने लैंड किया और वहां पर किस स्पिरिट से, और वहां पर उन्होंने अपने लोकल बच्चों के साथ एक क्रिकेट मैच भी खेला, जिसकी तस्वीर आप टीवी पे देख सकते हैं. सुपरस्टार रजनीकांत reaches Mumbai to attend the India versus New Zealand game. सुपर पास मौजूद हो भाई तो आप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट गेम मिस करेंगे. स्टार स्टडेड लाइनअप फ्रॉम द न्यूजीलैंड, फ्रॉम द इंडिया, और वानखेड़े का मैदान हो जो इंडिया का फेवरेट ग्राउंड है, जहां पर उन्होंने ट्रॉफी पिक की थी अपने विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ. वहीं पर पहुंच चुके हैं रजनीकांत. जहां एक तमाम एक्साइटमेंट का आलम है पूरे भारत में, वहीं पर अगली खबर is the news, a sad news from the India. Dr. Jay Shankar
जयशंकर पे मैं बाद में आऊंगा आपको। मैं एक और खबर देना चाहूंगा, पहले कुछ हैप्पी न्यूज दे दूं आपको मैं कि डॉक्टर जयशंकर गिफ्टेड अ बैट signed by Virat Kohli to the UK Prime Minister Rishi Sunak on the Diwali. Kohli is of course the face of the cricket. आप ये तस्वीर भी हमारी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। बाबर आजम does not deserves to be the Pakistan T20 team and neither in the ODI team. ये मैं नहीं कह रहा हरगिज, ये कह रहा है कौन कह रहा है जी? ये कह रहे हैं इमाद वसीम, कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह पाकिस्तान T20 में कैप्टन तो क्या, उनकी जगह भी नहीं बनती। और उसके बाद मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच विनिंग बॉलर कहते हैं कि आई डोंट थिंक बाबर आजम शुड बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान T20 टीम। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान टीम का वो पार्ट बने तो यकीनन पाकिस्तान की किस्मत में हार है जब तक बाबर इस टीम के साथ है। बहुत बड़ा बयान है, देखते हैं कि अब ये बयान भी रिवर्स होता है कि नहीं होता, क्योंकि बहुत से बयान रिवर्स हो रहे हैं। अगला बयान, अगली जो हेडलाइन है वो ऐसे ही एक रिवर्स बयान की जानिब है। फॉरवर्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक हैज नाउ फाइनली apologized to Ishwarya Rai, one of the sensations from the Bollywood, for his comments which he made last night, और जिसके और इस जेस्चर को पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। और द फैंस अराउंड द ग्लोब इन इंडिया एंड पाकिस्तान, श्रीलंका, स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशिया, उनको ये बयान उनका अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उनका जो ये जेस्चर है इसको तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा सराहा गया है। डेविड बैकम ने कहा है कि वो इंडिया की विन देखने आए हैं, लेकिन आप जब किलर फैक्टर आएगा तो आपको मिथोलॉजी बताएंगे कि डेविड बैकम जब मौजूद होते हैं तो इंडियन टीम के साथ क्या होता है। बड़ी एक्साइटिंग मेरे पास किलर फैक्टर है, तो ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम पहुंचेंगे प्रोग्राम के आखिर में किलर फैक्टर पे। तो आपको जुड़े रहना होगा N6 के ऊपर। एंड राइट नाउ फाइनली द सैड न्यूज फ्रॉम इंडिया, सुब्रात रॉय सहारा has been passed away at the age of 75. And if you are an Indian cricket fan, and you can see one of the Sahara jersey on the right behind me, that the Sahara India jersey must have been your first love if you were the Indian fan in the late 90s and the early 90s. Sahara Subrat Roy is no more among us. थोड़ी सी खबर देते चले जहां भारत की बात हो रही है आईपीएल की, कि आईपीएल ऑक्शन सेट टू हैपन इन द कोका कोला अरीना इन दुबई। अगर आप देख सके तस्वीरों में, कोका कोला अरीना उसको अभी से सजा दिया गया है और उस पर काम जारी है। 19 दिसंबर को ये ऑक्शन होने जा रही है, जो बहुत बड़ी ऑक्शन होगी आईपीएल की। और अगली न्यूज भी इसी ऑप्शन से जुड़ी है, और इसी ऑक्शन से जुड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स सेट टू रिलीज बेन स्टोक्स अहेड ऑफ द आईपीएल 2024 ऑक्शन। लगता है कि जहां किस्मत का सितारा डूबा इंग्लैंड के साथ, वहीं पर पैसे की जो देवी है वो भी रूठ गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक्स को खैर बात कह दिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज लाइकली टू बी प्लेड ऑन द स्लो पिच। जो खबर आई है, इंडियन मैनेजमेंट एज आस्क्ड द क्रिएटर्स टू शेव ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रास। ये हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे कि ग्रास की शेव करने से किसको हेल्प मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। विराट कोहली की एक पिक्चर दिखाती है जी, शेयर करेंगे, हमारा स्टूडियो शेयर करेगा। बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। बैक इन द पास्ट अगर आप जाएं तो यू विल बी एक्साइटेड टू सी केन विलियमसन एंड विराट कोहली 2008 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये तस्वीर है। और इस वर्ल्ड कप की खास बात तो ये थी कि भारत ने इस वर्ल्ड कप को उठा लिया। विराट कोहली की बेसिकली क्या कहते हैं, पर्दा कुशाई हुई। लेकिन इसके अलावा इसकी खास बात ये थी इस तस्वीर को लगाने की कि विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी एक विकेट ली है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट वन इन द हिस्ट्री टू टेक द टू विकेट्स एट द टू डिफरेंट वर्ल्ड कप एंड मेकिंग अ 50 इन द सेम मैच। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं केन विलियमसन के साथ 2008 के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, विराट कोहली टुक द ओनली विकेट एंड दैट विकेट वाज हिज काउंटर पार्ट केन विलियमसन इन दैट वर्ल्ड कप। एडम जैम्पा जो कल खेलने जा रहे हैं एक नॉकआउट गेम साउथ अफ्रीका के साथ, हैज एंडेड द लीग स्टेज एज अ हाईएस्ट विकेट टेकर so far before the first semi-final to be played. He is
now, given the chase of 22 wickets at this cricket World Cup, while Adam Zampa bowling में chase दिया है उन्होंने 22 wickets का, तो वहीं पर विराट कोहली has topped the batting chart after the league stage of the World Cup, और इसके अंदर 594 पे कोहली लीड कर रहे हैं, जबकि 550 पे डी कॉक हैं जो कल अपना मैच खेलेंगे, और कोहली को 90 रन चाहिए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो देखना यह है कि कोहली क्या ये दोनों हदफ अबूर कर लेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो मेरा किलर फैक्टर बन जाएगा। इंतजार करिएगा कि किलर फैक्टर में क्या होने वाला है कोहली के साथ। विराट कोहली गॉट क्लीन बॉल इन द नेट्स। बड़ा रेयर मंजर होगा जी, अगर हम तस्वीर देख सकें, प्रोडक्शन टीम दिखा सके। ये जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बड़े रेयर साइंस हैं कि आप विराट कोहली को देखें। तो इंडियन फैंस अपना दिल संभाल के रखिए। ये जो हेडलाइन की न्यूज में ये पिक्चर दिख रही है, ये रियल पिक्चर नहीं है, but the Virat Kohli got clean bowled in the nets ahead of the semi-final clash against New Zealand. अब आप पूछिए कि ये बोल्ड किसने किया था? जसप्रीत बुमराह इज द वन हु हैज बोल्ड विराट कोहली। अब ये मुझे मालूम नहीं कि इंडियन फैंस के लिए क्या ज्यादा खुशी का बायस है, विराट कोहली का बोल्ड होना या जसप्रीत बुमराह का मजीद फॉर्म में आना, जो ऑलरेडी एक नया रिकॉर्ड बना चुके हैं पावर प्ले के अंदर डॉट बॉल्स का, जिसपे हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा जी बिल्कुल एंड पे जाऊंगा अपनी हेडलाइंस की जानिब। दिनेश कार्तिक, पृथ्वी पटेल एंड साइमन डोल ने वर्ल्ड कप 2023 की एक ड्रीम टीम चुनी है। उस ड्रीम टीम के ओपनर हिटमैन भारत के कप्तान रोहित शर्मा और डी कॉक है, जबकि वन डाउन पे विराट कोहली और उसके बाद रचन रविंद्रा, उसके बाद क्लासेन, देन डाउन मैक्सवेल इन द लेट मिडल ऑर्डर, जडेजा, जैनसन, जैम्पा, और उन्होंने दो पेसर लिए जो कि हैं शामी और बुमराह, जो कि बॉलिंग ओपन करेंगे। अंपायर्स इस इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए ऑन फील्ड अंपायर्स विल बी रिचर्ड इलिंगवर्थ एंड रॉड टकर, जबकि थर्ड अंपायर जोल विल्सन होंगे। इफ बोथ द डेज, एक क्वेश्चन आया था मुझ तक, मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं कि अगर सेमीफाइनल में बारिश हो जाती है, बिल फर्ज मान लिया भारत और न्यूजीलैंड के माबैन और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा दिन है, रिजर्व डे को भी बारिश हो जाती है, क्या होगा? इफ यू आर एन इंडियन फैन, हैप्पी न्यूज फॉर यू। इंडिया विल रीच डायरेक्टली टू द फाइनल टू प्ले विद साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बैग पैक करके कैंटेस एयरलाइन के थ्रू वापस अपने घर जाना होगा। जी हमजा, ओवर टू यू इन द स्टूडियोज। Detailed headlines. I mean, nothing else to say. I mean, this was proper detail outline with first killer factor. और आपने वो म्यूजिक में सुना होगा कि वो कितना थ्रिलिंग किस्म का था। अभी एक और किलर फैक्टर रहता है जो हम लेटर ऑन इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं। There is no post match. We have discussed post match already. Let's move towards our panel. Let's start with Rangaji. Let's start with you and go towards our pre-match and see how do you see Indian team performing today. As पिच की बात कर चुके हैं डॉक्टर अदनान कि वो क्या समझते हैं कि पिच कैसी रही। उन्होंने बताया कि हल्की पिच पे खेला जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या कोई टीम को में चेंजेस देख रहे हैं इंडिया या न्यूजीलैंड की साइड पे? रंगा जी। Very good evening to everybody in North America, and good afternoon to everybody in Asia and who are listening to us. Big day, like Ravi Shastri will say, a big match at a big venue. So, in fact, some historical insights were this is the same day actually. Today was the day that Sachin played his last ever Test match on the same venue in 2013, 10 years ago. So it'll be interesting. They're playing at Wankhede in a ground that has seen, I think, 3 games so far. I think England played South Africa, a big scoring game. South Africa, Bangladesh, which was also a decently high scoring game. India, Sri Lanka, high scoring one-sided game. So you also had Australia, Afghanistan, which was a one-man show game. So it's seen some one-sided performances, but also some big performances. So ground as such will have an interesting play in the game. मेरे हिसाब से स्लो पिच खिलाना दोनों टीम के लिए फायदेमंद नहीं होगा, considering our pacers have done beautifully well. So why would you want to change what is working? At the same time, our spinners have also done well. So I think it's a toss up between what you want. But if you want a Jasprit Bumrah to go out there and pick wickets during the power play,
then you need to give him that kind of a wicket. And the way New Zealand has played, unki sirf ek buri innings rahi hai, which I think they were bowled out pretty cheaply by South Africa. I think एक game में जब वो 167 पे all out हुए थे. Otherwise, they've had all high scoring matches, consistent scores up above. So they will look for an all out attack. I think there's a lot of आज की तारीख में everyone wants to say the same thing. Toss doesn't make a difference, but I'm sure both the captains would want to bat first if they win the toss. And having a total in a semi-final is a very big deal. And ये हमने देखा था 4 साल पहले, जैसे डॉक्टर अदनान ने कहा था, it's a repeat of the semi-final. I'm sure in 2019 when India went into the dressing room after the first innings, they must have felt pretty good about themselves, getting New Zealand bundled out for 239. तो जब आप वैसा स्कोर में अंदर जाते हैं मैनचेस्टर में, आई थिंक इट वाज अ डेफिनेटली गेटेबल टोटल. बट देन इफ यू गो डाउन टू 5 for 3 with your number one run each, तो फिर पंगा हो जाता है. And that is what scoreboard pressure does. That's what a knockout game does. And that probably is not driven down to the ground. That's the scenario. That's the occasion. And that's what probably it'll come down to as well. Whoever bats first has to bat well for the first 10 to 15 overs. I think I'll probably allude to what Sachin Tendulkar said to Afghanistan जब वो आए थे उनसे मिलने, कि वानखेड़े is a very very giving wicket. अगर आप वहाँ पे 10 ओवर बिताते हैं, थोड़ा अपने आप को सेट करते हैं, it's a ground where you can score very quickly. बहुत बड़ी ग्राउंड है नहीं डिमेंशंस में, and you saw that कि couple of chances went down for Maxwell in that game, and उनके तो the stars completely changed, right? Or maybe they were aligned and those chances were meant to be, but and that's probably what either of the captains will look for, and the first 10 overs either side will be quite important. हाँ जी बिल्कुल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल आवर व्यूवर्स. और सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अदनान ने पिच की बात करी है, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू इंडिया, बिकॉज इन माय ओपिनियन इंडियन बॉलिंग अटैक, वेदर इट्स फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, इट्स फार मोर superior than this current New Zealand attack, because Bolt and Saudi are not the Bolt and Saudi of 2019. So there's a huge difference between both teams when it comes to fast bowling as well as the spin department. So second thing, it's a big day. When the tournament started on October 5th, this was the first goal for these teams to reach to the semi-final. Now they have achieved the first goal. Now they will set their eyes, and this is what they were waiting for. This game today will define the difference between player and a big player. So this game will create either impactful players or great players, which we will remember and discuss in next edition of the World Cup, because that's the legacy they leave behind, and this is what define the cricketers. So I hope both teams are ready for this big day, because India in 2015 and 2019 lost in semi-final, whereas if I put myself in the other team's shoes, I can see that they were even more unluckier than us. They lost both finals, 2015 and 2019, although India 9-0 in the league stage. But I think those stats can be thrown out of the window now, because you start on an even scale. This is a fresh day, knockout game, 9 doesn't matter anything, 5 or 4 losses doesn't matter anything. The team that performs on this big day will play the Sunday's final against Australia or South Africa. So I hope both teams are ready. I have no hesitation in saying India on current form, and given the skill set that Indian team possesses, is a far better team. Having said that, the only team that can beat India in this World Cup is India itself, and the expectation of the crowd that can put them down. Otherwise, I don't see that there is any other team that can stop India. Back to you. I think that's very well summarized as well, Gurpreet ji. I think one other thing I would like to add is very true. Wipe the slate clean. Don't think about the 80 runs for Virat Kohli. Don't think about the wickets for anybody in our bowling lineup. The key is all of these guys have done well. They thoroughly deserve to be in the semi-final. They have outplayed every team, but it's important that they outplay these two teams again. जैसे सब कहते हैं अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर गेम जीतना है. सो यू कैन नॉट से भाई मैंने 9 टीम को हरा दिया, कप मेरा हो गया, भले ही मैं जीतूं कि ना जीतूं.
It's about turning up every match, taking it as it comes, going out there and beating this team. On paper, or in fact, on performances, the team looks very strong, looks very confident, and probably the most optimal chance India will have to lift the cup in the near future, considering this team has played as a collective unit for a while together. After 2011, which was the last World Cup India won, some of the players played in the 15 and the 19, and the team has worked well together. They look like a much more cohesive unit right now. So this is a rock solid team, which looks like a very good unit to go through. And to Gurpreet Ji's point, the spearheads at New Zealand don't look the same way that they did 4 years ago. So a good chance, and hopefully we see a cracking contest at the Wankhede in 3.5 hours time. जी हमजा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से, लेकिन इंडिया की मैं जितनी भी तारीफ करूँ यहाँ पर एक चीज में वो कम होगी कि देखें इंडिया ने जिस तरह अभी रंगा जी ने बताया कि 2011 से जूनियर प्लेयर्स आए, उनको इंडेंट किया गया अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पॉलिश किया गया। तो अगर मैं पिछले 4 साल उठा लूं, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, 2011 तक 2019 पे जाऊं अगर मैं, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, आप हैरान होंगे सुन के, जो हम इनकी बेंच स्ट्रेंथ देख रहे हैं आज, जो गुरप्रीत जी कई दफा मुझे स्टूडियोज में भी बता चुके हैं, और कई दफा वो नंबर 5 पे बंदे गिनवाती हैं, नंबर 4 पे मुझे गिनवाती हैं, नंबर 1 पे कि पीछे कौन बैठा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वो क्यों ठीक है कि भारत ने पिछले 4 साल में 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से 66 ओडीआई मैचेस खेले हैं और 51 प्लेयर्स इन्होंने इंडक्ट किए हैं उसमें। तो आप इसमें ठीक है कि उसमें कुछ इंजरीज भी शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद इतने ज्यादा प्लेयर्स को मौका देना और इतनी सीरीज में खिलाना, 66 मैचेस, 50 न्यू प्लेयर्स हैव बीन पुट इन। दैट्स व्हाई भारत के पास हर पोजीशन का बैकअप है। तो उनको अगर शामी जख्मी हो जाती हैं तो आपको कोई फील नहीं होता। आपको केएल राहुल टीम से बाहर हो जाती हैं, आपको कोई मालूम नहीं होता। हार्दिक पांड्या जैसा की प्लेयर भारत के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को किसी लेवल पे हमने मीडिया के अंदर या टीम के अंदर चर्चा नहीं सुनी कि हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो भारत फाइनल और सेमीफाइनल कैसे जीतेगा। They don't bother about Hardik Pandya because they have everything finest than the Hardik Pandya. एक प्लेयर नहीं आता और शामी एज अ रिजर्व बैठे हुए हैं और वो वहां पर एक नया विकेट्स का एक नया अंबार लगा देते हैं। तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट एंड द पॉजिटिव्स ऑफ द टीम इंडिया। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ मैंने आपको अमेजिंग फैक्ट्स भी देने हैं, तो उससे पहले मैं कुछ आपको लूप होल्स भी बता दूं कि आखिर न्यूजीलैंड का भी हक है यार, वो भी खेलने आए हैं तो उन्होंने भी तो मैच जीतने की कोशिश करनी है ना मुंबई। अब हाउ टू विन द मैच अगेंस्ट इंडिया बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, अनटिल अनलेस कि इंडिया अपने होम प्रेशर में चोक ना कर जाए, जैसा कि हम देख चुके हैं मुंबई में बैक इन 87, पाकिस्तान लाहौर में 87, बड़ा अनबिलीवेबल शॉकिंग डिफीट्स थी दो। भारत की टीम की एक ही कमजोरी है, भारत की टीम की बैटिंग अभी तक टेस्ट नहीं हुई। आई मीन अनटिल नंबर 11 भारत की टेल, चूंकि भारत की अभी तक ऊपर से बारी खत्म नहीं हुई, इतना स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है और हर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। शर्जिस आयर से नीचे वो छोड़ते ही नहीं है कि बात बढ़े, और उनके बॉलर्स को अगर पहले मौका मिल जाए तो वो 25-30 ओवर में मैच खत्म कर देते हैं। तो इंडिया की बैटिंग अभी तक नंबर 11 पे टेस्ट नहीं हुई, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जिनकी टेल इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे लंबी टेल है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट बुक्स के ऊपर ये टेल एक लंबी टेल है। न्यूजीलैंड अपने मास्टर ब्लास्टर ट्रेंट बोल्ट के थ्रू एक दफा इंडिया की बैटिंग लाइनअप में घुसने की कोशिश करेगा, और वो घुसने की कोशिश कहां करेंगे? इंडिया के मिडल ऑर्डर में। इंडिया के वंस अगर वो शर्जिस आयर और इस लेवल के ऊपर घुस जाते हैं शुरू में, विद इन 25 ओवर्स इंडिया विल बी इन द ट्रबल। आल्दो कि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया आउट हो जाएगा या उनकी विकेटें वो मैच लूज कर जाएंगे या उनकी ओवर बैटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी टेल के अंदर वो दमखम नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की टेल के अंदर है, बड़ी शॉट्स खेलने का और मैच को कहीं से कहीं निकाल ले जाने का। तो इंडिया इस चीज में थोड़ी सी मार खाता है कि वंस अगर उनकी रूट्स में घुसने में कामयाब हो जाता है न्यूजीलैंड, दे वोंट हैव मच टू ऑफर। अगर और उनकी की टू सक्सेस इज द कैप्टन रोहित शर्मा।
जब जब रोहित शर्मा ऊपर से चलते हैं, वो प्रेशर रिलीज करते हैं और विराट कोहली और केएल राहुल से प्रेशर हटता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हिटमैन नहीं चले तो इंडिया विल कुड हैव बीन इन द ट्रबल, क्योंकि नीचे बहुत पैनिक हो जाता है। अगर कोहली को काफी स्लो खेलना पड़ेगा। इवन ही इज अ मास्टरमाइंड, ही कैन क्राफ्ट द इनिंग्स, बट देन डिलिबरेटली कोहली हैज टू स्टेबलाइज द इनिंग्स। एनी हाउ, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, दोबारा गेस्ट को शामिल करेंगे। क्विकली आपको बता चलूं कि पहली मर्तबा जब भारत ने सेमीफाइनल खेला तो दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड इन द मैनचेस्टर 1983 इन द विनिंग कॉज, जो इंडिया का लकी वर्ल्ड कप था। दे वन बाय 6 विकेट्स एंड अल्टीमेटली बीटिंग द क्लाइव लॉर्ड्स वेस्ट इंडीज इन द ग्रैंड फिनाले इन द लॉर्ड्स। और सेकंड टाइम जब उनको मौका मिला तो दैट वाज आल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड, बट दैट वाज इन मुंबई। बट सरप्राइजिंगली that was the revenge game for the England in 1987, and India lost to them in by 35 runs against the Mike Gittings England. And then in the 1996, Azharuddin's India lost to Sri Lanka, and the match was awarded by then match referee Clive Lloyd to the Sri Lankan team, who ultimately finished winners in the 1996 वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले इन लाहौर। 2003 में जो इंडिया को सेमीफाइनल मिला वो बहुत ही आसान सेमीफाइनल मिला। तो एक एक मौके पे ये लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान की किस्मत जाग गई तो शायद ये 2003 का रिपीट हो जाए और भारत को एक आसान टीम मिल जाए। हालांकि आसान कोई भी नहीं होती, सब टीमें खेलने आई होती हैं, मगर भारत के मुकाबले के हिसाब से कीनिया और अफगानिस्तान बनिस्बत आसान टीमें हैं। 2003 में भारत ने डरबन पे कीनिया को शिकस्त दी, 91 रन से वो मैच जीता। और उसके बाद 2011 में एक क्लासिक यादगार मैच में जो अभी तक हाईएस्ट लेवल है, जहां पर इंडो पाक आर्च राइवल्स आपस में मिले मोहाली के मैदान में, 29 रन से 2011 में पाकिस्तान टीम को वहां पर शिकस्त दी। और उसके बाद इंडिया के दो बड़े ही अलार्मिंग सेमीफाइनल का दौर शामिल हुआ कि जब इंडिया ने लगातार 20 प्लस मैचेस जीते और उन्होंने इस दौरान सिर्फ 2 गेम्स हारी, और वो दोनों गेम प्रेशर गेम्स, नॉकआउट गेम्स थी। फर्स्ट गेम वाज 2015 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने होम ग्राउंड में उनको 95 रन से शिकस्त दी। और उसके बाद मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, हालांकि मैनचेस्टर इंडिया का लकी ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को भी 2 दफा शिकस्त दी हुई है, वर्ल्ड कप गेम में शिकस्त दी हुई है। उन्होंने इंग्लैंड को अपने विनिंग वर्ल्ड कप में शिकस्त दी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर वो न्यूजीलैंड से 1 विकेट के मार्जिन से जहां पर वो रन आउट हुआ, इंडिया लॉस्ट बाय 18 रन्स। इट कुड हैव बीन द रिवेंज गेम। अब देखना ये है कि टॉप परफॉर्मर कौन होगा, भारत का टॉप ऑर्डर हो या बॉलिंग ऑर्डर, दोनों ही बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। नेम द प्लेयर जिनका गुन गाने पे दिल ना करता हो। बुमराह है तो वो बाकमाल है, शामी है तो वो बाकमाल है, कोहली है, केएल राहुल है या शर्मा जी हैं। उन्होंने क्रिकेट सर्किट में इस वक्त तबाही मचाई हुई है। इंडिया विद अ वन मैन शो क्रूजिंग टुवर्ड्स द ट्रॉफी। जो टॉप परफॉर्मर्स रहे भारत के सेमीफाइनल्स में, 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ यशपाल शर्मा ने 61 रन्स बनाए थे और कपिल देव ने 35 रन देके 3 विकेट लिए थे, और मोहिंदर अमरनाथ वहां मैन ऑफ द मैच थे विद 46 एंड 2 फॉर 27। जबकि 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ अजहरुद्दीन 64 एंड मनिंदर सिंह उनके मायना स्पिनर 3 फॉर 54। 1996 में जो वो मैच हारे थे श्रीलंका से, सचिन मेड 65 एंड श्रीनाथ टुक 3 विकेट्स फॉर 34। 2003 में गंगूली ने 111 स्कोर किए थे, नॉट आउट, एक बहुत बड़ी बारी खेली थी, और उनके फास्ट बॉलर प्रीमियर फास्ट बॉलर जहीर खान ने 14 रन देके 3 विकेटें ली थी। और पाकिस्तान के खिलाफ 2011 में सचिन 85 पे थे और उन्होंने स्कोर बनाया था, और आशीष नेहरा ने 33 रन देके 2 विकेटें ली थी। जबकि 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हारे थे, वहां पर धोनी ने 65 रन बनाए थे और उमेश यादव ने 4 विकेट्स लिए थे 72 रन के एवज। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में जडेजा ने 77 रन बनाए थे और भुवी ने 3 विकेटें ली थी 43 रन देके। और इंडिया के बारे में जैसे कि मैंने आपको बात की, थोड़ा सा बात करते हैं अब रंगा जी से और गुरप्रीत जी से, कि रोहित एंड कोहली एक क्लासिक, जिनको रोको कहा जा रहा है, रोको के नाम से, इन्होंने दे हैव स्कोर्ड 50 प्लस इन ईच ऑफ द 9 मैचेस। तो इनको आप कैसे देख रहे हैं कि कल के मैच में इनका चलना कितना जरूरी है, रंगा जी?
Chalna zaruri to hai. You obviously want someone to give you that kind of a start. But what the team has shown is, even if one of them fails, the other one is able to do it. जैसे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी जल्दी निकल गए थे चेस में, एंड it was all about Kohli and KL Rahul taking us through. I think हम लोग 2 for 3 थे वहाँ से, they took them through all the way. उन दोनों में से एक का चलना जरूरी होगा. आई थिंक इट्स लाइक एनी अदर टीम. न्यूजीलैंड विल वांट either Conway, Rachin Ravindra or Kane Williamson to play a big innings, and which is always the case. You obviously want someone to anchor your side. What is important and what I would hope to see is Rohit Sharma doesn't change the way he plays, doesn't get bogged down by this being a knockout game. He goes out there, expresses himself, plays the way he's played throughout these 9 games. वो भले ही 40 पे हो या 55 पे हो, he's not cared. He's gone there to dominate the bowling, and वो जब ऐसा dominate करते हैं तो he basically changes the way the person coming after him has to play. Because for example जैसे साउथ अफ्रीका के साथ किस्मत हमारी अच्छी थी, जैसे यानसन ने पहले ओवर में 22 रन को दे दिए थे, 5 wides and stuff, but still 10 overs 91, right? When someone hits 91 of the first 10, the second 10, the other two guys can take it a little easier, still score at 6 and over, and you're still at about 7.5 in 20 overs. So makes a world of a difference when someone dominates bowling like that. So it's important. Rohit Sharma continues to play in the same way. I would love to see Shubman Gill convert one of his 50 innings that he's playing very well to 100 today. It'll be brilliant to see him get a century today. He's already got one, I think, in the World Cup, but it'll be lovely to see him get another today. KL Rahul, last match, mein to, they all had a lovely gala time again in the Netherlands. Lots of runs, lots of scoring. But I think very important is they stick to the plan, they stick to what they've been doing, what has been working well. They've not bothered about कौन लेफ्ट आर्मर है, कौन कैसे डाल रहा है. I think they've played the ball to its merit. They've played the ball to a plan. We just need to be a little more careful about the left arm spin. Santner is a phenomenal bowler, and that could trouble the likes of Gill and Kohli. We have seen Gill getting bowled by Maharaj of that left arm ball with beautiful delivery that day. कोहली को भी लेफ्ट आर्म बॉलर से काफ़ी तकलीफ होती है यूजली. So that is a person to be watched out. And also considering Rachin Ravindra can swing his arm a little bit. So they have 2 left arm spinners who can cause some trouble. And then if you bring the pitch question into picture, अगर pitch आप slow कर दें तो आप उनकी भी मदद कर रहे हैं. So I think it's important that we don't look at the pitch too much. Go there and do what you've done well. The team has what it takes to win this. The team has what it takes to show that they've been supreme throughout, and have a good match. And New Zealand is not going to be sitting there giving us a walkover. Yes, हालांकि हमारी previous encounter interesting थी, but ज़्यादा भी one-sided नहीं थी, but interesting थी. So I'm looking for another great match. I would love for it to be one-sided as an Indian fan, but I would also love for it to be a hard-fought contest as a cricket fan. जी बिल्कुल जी, मैं गुरप्रीत जी आपकी तरफ भी आता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक विनिंग मेथोलॉजी बता दूं. जो इंडियन फैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं N6 की इस लाइव ट्रांसमिशन में, जैसा कि आपको हम बताते थे कि 92 में भी ऐसे हुआ था हैशटैग. तो देखें हम कैसे हो सकता है कि हम हमसाया मुल्क भारत के साथ हैशटैग ना लगाएं. हैशटैग विनिंग वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था. आफ्टर विनिंग देयर फर्स्ट सेमीफाइनल in 1983, India lost their next 2 semifinals in 87 and 96, then won 2 in a row, 2003 and 2011. Then they lost 2 in a row, 2015, 2019. So मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अब मेथोलॉजी के मुताबिक अगर जाए विनिंग मेथोलॉजी, तो इस सेमीफाइनल में इंडिया की बारी बनती है. देखते हैं कि क्या इस मेथोलॉजी को इंडिया सही कर पाता है कि नहीं कर पाता, जैसा कि वो कार्ड्स पे चल रही है बैक फ्रॉम द 1983. जसप्रीत बुमराह, गुरप्रीत जी, प्रीमियम बॉलर भारत के, 175 out of 228 balls in the first 10 overs of the dot balls in the Bumrah in this World Cup. His percentage is 80%, unbelievable. मुझे ये लगता है कि प्ले स्टेशन बॉल्स डाल रहा है, बुमराह नहीं डाल रहे. Indian bowler taking 17 wickets in 9 matches. Best figures for the season, 4 for 39, and he averages 15.64. This is unreal.
जी बिल्कुल डॉक्टर अदनान एंड if you go back a year right the Indian bowling lineup was struggling. The only linchpin missing was Jasprit Bumrah. When he comes back he gives the confidence to the other fellow bowlers as well, same like Naseem Shah gives to this Pakistan bowling attack. If Naseem Shah was there, this bowling attack would have been totally different. So same thing happens with Indian bowling attack when Bumrah sets the tone. Two players in this World Cup are very important in this 9-0 run. One is Jasprit Bumrah in bowling sets the tone, and the captain Rohit Sharma sets the tone in batting. If you take these two players out, this 9-0 would not be 9-0 as convincing as it has looked on paper. And when Jasprit Bumrah is on song, he gives confidence to other bowlers as well, and the batsmen give wickets to other bowlers because they have to score runs. They try to go after Shami, or they try to go after Siraj, and doing that they give away wickets. And once India gets one or two wickets, and then the spinners comes into play, and the rest is a history. But knowing this New Zealand team, if one team you would have asked me to avoid in the semi-final, I would have raised my hand and said, let's avoid New Zealand, rather play more riskier teams, which is Australia and South Africa, because their approach is different and they give you chances. This New Zealand team, they are very methodical. They read about their opponents, and they change their strategy very well. They always punch above their weight, which is their big strength, knowing that they don't have superheroes, but they always have people who gets the job done. You call them Jimmy Neeshams, you call them Rachin Ravindra, you call them Devon Conway. They will not have high class superheroes like the other team possess, the Kohlis, the Rohits, but they have the players who will give you more than 100% and gets the job done. And that is why they have played 9 semi-final. Although they are also the team, after playing 9 semi-finals, they haven't won a trophy. So they would like to tick a box somewhere कि हम 9 बार सेमीफाइनल खेले हैं, एक भी बार नहीं जीते. When we gonna go one step ahead? और पिछली 2 बार वो they were the best team if you ask me, and then they lost in the finals. In the finals I was picking them to win, but they lost on both occasions, so they will like to change this one. पर एक weakness उनमें आज भी है. If you ask me bowling lineup, India is far more ahead than New Zealand, but I will agree with your assessment that the tail of India is way too long. And that was the reason why India was adamant to play, Hardik Pandya and Shardul Thakur. But I personally believe injury to him is a blessing in disguise. Otherwise, we would have wasted Shami on the bench. Shami playing makes the Indian bowling lineup stronger, but somehow we have to compromise on the batting side. So let's hope 5 specialist bowlers will get the job done in game number 10 as well. जी बिल्कुल जी, थोड़ा सा की टू सक्सेस देख लेते हैं. की टू सक्सेस भारत के साबिक कप्तान और मास्टर ब्लास्टर विराट कोहली को इस मैच में परफॉर्म करना होगा. 524 runs in the 9 matches of the ICC Cricket World Cup at the average of 99, strike rate of 88.52. He has smashed 5 half centuries and 2 centuries and achieved the highest score of 103 not out. Virat is having an average of 248 against spinners in the World Cup. And today he is going to play against one of the best spinner Mitchell Santner. So match of the best versus best भी देखने में आएगा. विराट कोहली is the first Indian player to be a part of the 30 wins in the World Cup history. Second key to success, रोहित शर्मा हिटमैन उनके कप्तान जो भारत को अभी तक बड़ी मजबूत बुनियादें फराहम कर रहे हैं, जिसकी बिना पे भारत की बैटिंग बड़ी तगड़ी होके चल रही है. उनके 1 डाउन 2 डाउन उनको उनमें जोश मजीद तारी हो जाता है. रोहित शर्मा has an amazing average of 55.75 and a strike rate of 95.03. 4 साल से वर्ल्ड कप के छक्कों को लीड कर रहे हैं. ओडीआई सीजन के अंदर लीड कर रहे हैं छक्कों में. एंड एज अ ओपनर द बेस्ट एवर स्ट्राइक रेट ऑफ ओडीआई एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर. यही भारत की जीत है. और अगर मैं आपसे बात करता चलूं एवरेज की, तो एवरेज ऑफ टॉप इंडियन 5 बैटर्स जिन पे इंडिया फोकस है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि यही 5 इंडिया को बचा रहे हैं क्योंकि टेल को एक्सपोज नहीं होने दे रहे. रोहित एज अ ओपनर 55.75 average, Gill as a opener 62.75,
Kohli at the one down, 61.47. Sharias Iyer at the number 4, 51.52. KL Rahul number 5, 54.95, and an amazing strike rate of 96.81. The best number 5 in the ODIs currently in any situation, and the best one ever in the one day and in the crisis. Ji Rangaji, final words on the Indian batting and the bowling, whatever you want to say, then we will jump on the New Zealand. I think this is a lovely statistics that Dr. Adnan's presented. अगर आपके top 5 के average 50 के ऊपर है, even if they have an average day, that's good enough, right? So, and one of them have an above average day, you've had a 300 score. So that's a great foundation to sit on. But the worry is that that foundation is the only thing you have. You don't have 5 people after that coming with an average of 25 or 30. There's a Jadeja who comes in after that. उसके बाद लंबी tail हो जाती है. But I think it's about how they apply themselves today and give a great start. I think एक और बात कहना चाहूँगा at this point. We've had 9 games. They're nine zip right now. But in those 9 games, they've had 6 different man of the matches. So there has not been one man or one player who's been doing the job for them. It's been a cohesive effort. Every player has contributed. Every player has delivered in what is their, I would say, अगर corporate term में बोलें कि KPI है, उनसे क्या request है, क्या demand है, सब ने उस पर deliver किया है, उस पर खरे उतरे हैं. I think only Kohli has got it twice. And दोनों बार शायद आप अगर सोचें कि उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच जडेजा से छीन लिया है, एक बार फाइफर से छीन लिया, एक बार दूसरे स्कोर से छीन लिया. So I think Jadeja has got it, Kohli's got it twice, and maybe I think Rohit Sharma has got it twice. But otherwise, the player of the matches have also been spread across, which tells you that it's a team going in and performing very well. As a bowling unit, definitely agree with what Gurpreet ji is saying. It would have been great to have a sixth bowling option in Hardik Pandya. A big loss, but a massive gain with Shami, who's coming in and getting you wickets. I think सिर्फ उन्होंने जो पहले 4 गेम नहीं खेले, उसके बाद बाकी 5 में सिर्फ प्रीवियस गेम में नेदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने विकेट नहीं लिए. बाकी हर गेम में उन्होंने विकेट लिए हैं. So I think he's been an amazing add to the team. Fight would be a wrong word, but amazing add to the team. And the side looks confident. The side looks very, very put together. And I don't think they will change anything, even if it's a slow pitch. I don't foresee another spinner being added in the form of an Akshar Patel or a Ashwin. I see Rohit Sharma, much like his wife does this as long as he's playing. I think he is also a little superstitious. He'll want to keep the team the same, not change sides, and go with that, because it's been a very, very commanding performance so far. जी बिल्कुल जी, थोड़ी सी बात उस टीम की कर लें जो कि लाखों मील तय करके ओशियाना जोन से आखिरकार सब कॉन्टिनेंट पहुंची, एंड द मोस्ट सक्सेसफुल टीम टू रीच द नॉकआउट्स along with the team Australia for the record 9 times. The team with the most semi-final appearances along with the team Australia, team of Kiwis, New Zealand team, they are having an amazing record to reach the semi-final for the 5 consecutive times. But they are not the only team, they are second behind England, who have done this from 1975 to 1992, and the New Zealand team has done this from 2007 to 2019, the only team along with England for the consecutive 5 appearances. तो ये आपका बताता है confidence level in the recent cricket, in the competitive game, in the competitive cricket, और आपका confidence sky rocket हो जाता है जब आप देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या चल रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट्स के अंदर, नॉकआउट राउंड्स तक पहुंचने का. अगर मैं इंडिया की तरह न्यूजीलैंड की यादें ताज़ा करूं फ्रॉम द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो 1975 पहले वर्ल्ड कप में भी ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, और ओवल के तारीखी मैदान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच, सभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो तो मैच विनिंग टीम है. दे लॉस्ट बाय 5 विकेट्स एंड देन they lost to England at Manchester in 1979 by 9 runs, and then came 1992 and the 1999, जहां पर उनको टीम पाकिस्तान का सामना था, और आज तक वो नॉकआउट गेम में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके. 92 में ऑकलैंड के मकाम पे मोइन खान के स्क्वायर लग के छक्के की मदद से they lost by 4 wickets, and in the 1999 in the unbelievable game at the Manchester,
Pakistan chased a high scoring game and New Zealand unbelievably losing by 9 wickets. जबकि 2007 में वर्सेस श्रीलंका द किंगस्टन दे लॉस्ट बाय 81 रन्स और उसके बाद 2015 में फाइनली they have won for the very first time at the Auckland in their home at the lucky ground against South Africa, winning by 4 wickets, but couldn't win the final game against Australia and the MCG. And then 2019 में दोबारा मैनचेस्टर में वो जहां पर पाकिस्तान से 1999 का सेमीफाइनल हारे थे, वहां पर उन्होंने भारत की टीम को, एक मजबूत टीम को शिकस्त दी. दैट वाज द ओनली लॉस ऑफ इंडिया after the England loss in that World Cup. They won by 81 runs. They had lost their first 6 semi-finals, but later on, जैसा कि गुरप्रीत जी ने बताया था आपको कि उसके बाद वो 2 सेमीफाइनल जीते और अल्टीमेटली वे वर एंडिंग अप, लेकिन कुदरत ने उनका साथ नहीं दिया. देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप में फतह की देवी उनसे कितने दूर है. क्या वो भारत की मजबूत टीम से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे. अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं कि हैव के सेमीफाइनल्स लूजिंग में जहां पर उनके नेगेटिव्स है, तो नेगेटिव्स वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेले भी ये हैं. न्यूजीलैंड ऐसी वाहिद टीम है दुनिया क्रिकेट की जिसके पास सबसे ज्यादा सेमीफाइनल हारने का रिकॉर्ड है. फॉर द रिकॉर्ड 6 games दे हैव लॉस्ट. एंड प्लेयर्स टू वॉच की टू सक्सेस, जैसे कि बात की हमने पहले, रचिन रविंद्रा. बाकी हम ओपिनियन लेंगे अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स की. रचिन रविंद्रा प्लेयर टू वॉच. न्यूजीलैंड रचिन रविंद्रा, young sensation from New Zealand, hitting 565 runs in 9 games, which is unbelievable. He is also towards the leading run scorer list. देखते हैं कि कोहली इनमें से और डीकॉक में से कौन रन्स की दौड़ में एंड पे पहुंचेगा. And he is New Zealand's #1 run scorer in this edition. और इनका strike rate 108.45 है, जबकि his average is 70.63 and he has 2 half century and 3 tons to his name. Amazing. जी रंगा जी. को बैटिंग करते हुए देखने बहुत मजा आता है. एक्चुअली इट्स ग्रेट टू वॉच. एंड अगर मैं, if someone had asked me as an Indian who would you like seeing winning the cup, it's obvious I would have said India. But if you ask me, put India aside and see who you want winning the tournament, I would have said New Zealand. They're a great side, a very spirited side. किसी भी और टीम को आप 6 बार सेमीफाइनल में मात दे दो तो उनकी मोरल डाउन हो जाती है. But these guys keep coming back again and again and again. They have bettered themselves in 2015, 2019. अब वापस 2023 में semis में है. They're a fantastic side. Never to be kept back as someone who can be steamrolled past. जैसे गुरप्रीत जी ने कहा, if there was an option to choose, definitely wouldn't have chosen New Zealand as well. Secretly was hoping Afghanistan did what they did and went through, but that was not to be. But that said, I think unke strong points and key success would be, again, like we said, for India, top 3 are important. For them as well, top 3 are very important. They also have some big hitters down the order with Mitchell doing very well, and also Phillips, who can have a handy hand. But is waqt their dependency on Conway, Rachin Ravindra, and Kane Williamson is quite high, and that's probably where the Indian team also will concentrate. कि इनको पहले निकाल दें तो शायद स्कोर कम मिले चेस करने के लिए. In terms of their strength of bowling, it is a very strong bowling side as well. Nothing easy from their side. But from a batting standpoint, big lookout for is Rachin Ravindra and Kane Williamson for me. Big match. Kane बिल्कुल जी. Williamson They are big match relying today, on a Rachin Ravindra form. they are relying on a Devin Conway to unleash a big innings. He is a big match winner और जब वो बड़ी बारी खेलते हैं तो मुखालिफ टीम फंस सकती है. बिल्कुल जी. गुरप्रीत जी को दोबारा शामिल करेंगे डिस्कशन में और थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आएंगे कि मिचेल सैंटनर, द न्यूजीलैंड बॉलर, हैज पिक्ड 16 wickets in 9 games at the average of 24.87, the best figure of 5 for 59. उनकी फाइनेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस स्पिन बेस्ट बॉलर का मुकाबला बेस्ट स्पिन बैटिंग जो खेलती है उनसे है. विराट कोहली जिनकी एवरेज 244 से ऊपर है. गुरप्रीत जी, हाउ यू सी द इंडियन बैटिंग अगेंस्ट द गुड स्पिनिंग अटैक?
जी बिल्कुल फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड हैज अ गुड स्पिनिंग अटैक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिचेल सेंटनर ग्लेन फिलिप्स भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे और उसके साथ सचिन रविंद्रा भी बॉलिंग करेंगे बट इफ सेंटनर इज नॉट 100% विच वी हैव सीन जब पहला मैच भी इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ हुआ था कंपेयरिंग टू ऑल अदर 8 टीम्स उसका रिकॉर्ड एक तरफ करके देख लीजिए और इंडिया के अगेंस्ट एक तरफ करके देख लीजिए तो यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस सो इंडियन जो बैटिंग है वो उसको अच्छी तरह से खेलती है और उसका रीज़न एक और भी है कि ऑल दीज प्लेयर्स दे प्ले इन आईपीएल बिकॉज सेंटनर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स तो उसकी वजह से भी नेट्स में खेलने की वजह से या इन बिटवीन अपने मैचेस खेलने की वजह से दे नो इनसाइड आउट व्हाट इज़ देयर वीकनेस व्हाट इज़ देयर स्ट्रेंथ एंड सेम अप्लाइज टू इंडियन बैटिंग लाइनअप एज वेल न्यूजीलैंड बॉलर्स कैन उनको भी पता है कि इनकी क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं पर मुझे लगता है कि अभी जो दो इसमें ट्रम्प कार्ड होंगे आपने कोहली की बात करी है तो मुझे सबसे ज़्यादा शुभमन गिल पे भरोसा है जब पहले भी एशिया कप में भी मैंने यही कहा था कि इंडिया का ट्रम्प कार्ड बिग गेम में यही होगा डेंगू होने की वजह से पहले 2-3 मैच उनके ठीक नहीं गए एंड वंस ही इज बैक इन हिज रिदम ही इज परफॉर्मिंग बट अभी तक उन्होंने सेंचुरी नहीं करी है पिछले मेरे ख्याल से 92 पे आउट हुए थे सेंचुरी नहीं करी है तो एक वीक लिंक अगर आप मुझसे पूछे 10 बॉक्स इंडिया ने टिक करे हैं 1 बॉक्स टिक नहीं हुआ है एंड दैट इज शुभमन गिल हैजंट स्कोर्ड अ सेंचुरी और सूर्या कुमार यादव जो हमारा ट्रम्प कार्ड है नीचे क्योंकि हमारा जो है टेल लंबी हो जाती है तो सूर्या कुमार यादव से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस पे अभी वो 60-70% तक पहुंचे हैं तो अगर ये दोनों भी क्लिक करते हैं तो जो 5 बैट्समैन सुपर स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं तो सडनली वो जो टेल लंबी आपको लग रही है ना उस टेल की बारी एक बारी फिर से नहीं आएगी तो बिल्कुल जी, मुझे क्विकली चलेंगे आगे। प्रोग्राम को इख्तिताम भी करना है तो क्विकली चलेंगे कि वैनखेड़े की थोड़ी सी बात कर लें कि ओडीआई रिकॉर्ड्स एट वैनखेड़े। रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड और इंडिया वैनखेड़े पे एक मैच खेल चुके हैं, उसमें जीत न्यूजीलैंड की थी। अभी तक वैनखेड़े पे भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे रखी है। पिच कहा जा रहा है कि जो मुंबई की है बड़ा बैलेंस ट्रैक होगा और बड़ा अच्छा ट्रैक होगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स का लास्ट 10 मैचेस का अगर मैं उठाऊं तो 318 है, 318। फील्डिंग फर्स्ट इज रिकमेंडेड एट द वेन्यू विद द टीम बैटिंग सेकंड विनिंग 60% ऑफ इट्स मैचेस, जो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बताता है। लास्ट 5 ओडीआई कॉन्टेस्ट जो हुए have seen India winning 4 times while New Zealand have failed to register a single win, जबकि एक मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। हाईएस्ट स्कोर इन दीज 5 गेम्स इज 385 बाय इंडिया और जो लोएस्ट स्कोर था वो 104 न्यूजीलैंड का था। और इसके अलावा अगर मैं बताना चलूंगा आपको कि टीम बैटिंग फर्स्ट है 124 टाइम्स, लॉस्ट 28 टाइम्स इन 57 गेम्स, और चेजिंग साइड है वन ऑन 35 ओकेजन्स एंड लॉस्ट 22 टाइम्स इन 60 गेम्स। और इंडिया हैव लॉस्ट 9 matches out of 14 games to the New Zealand in the ICC white ball events. Key to success for New Zealand: India have never beaten New Zealand in the knockout game so far. और इंडिया और अगर न्यूजीलैंड की मैं बात करूं हेड टू हेड तो टोटल ओडीआई अभी इनके माबैन हो चुकी हैं 117। इंडिया की टीम हैज वन 59 49, माफ कीजिएगा 59। न्यूजीलैंड हैज वन 50 50। एक मैच टाई हुआ और 7 मैच किसी नतीजे पे पहुंचे बगैर खत्म हो गए। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें हेड टू हेड तो दोनों के माबैन 9 मैच हुए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम का पल्ला यहाँ पर भारी है। 5 मैचों में उन्होंने शिकस्त दी है, एक मैच का फैसला नहीं हुआ। और इंडिया की टीम 3 मैच जीतने में कामयाब हुई है। और इंडिया की वर्सेस न्यूजीलैंड जो गेम्स थे 1975 वो पहला वर्ल्ड कप था जब दोनों टीमें आपस में मिली और न्यूजीलैंड वाज विनिंग बाय 4 विकेट्स एट मैनचेस्टर। 1979 न्यूजीलैंड विनिंग बाय 8 विकेट्स एट लीड्स। 87 में इंडिया, बेसिकली 87 का वर्ल्ड कप वो पहला वर्ल्ड कप था जहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, और एक मरतबा नहीं दी, 2 बार दी। पहली मरतबा दी बेंगलुरु में 16 रन से और दूसरी मरतबा दी नागपुर में 9 विकेट से। जबकि 92 में न्यूजीलैंड ने दोबारा शिकस्त दी भारत को ड्यूनेडन में 4 विकेट से, और 99 में न्यूजीलैंड हैज वन अगेन अगेंस्ट इंडिया बाय द 5 विकेट्स। तो ये बड़े कुछ अमेजिंग स्टैट थे मेरे पास। और न्यूजीलैंड, एक सबसे अमेजिंग स्टैट ये था कि 1975 में न्यूजीलैंड ने भारत को मैनचेस्टर में शिकस्त दी और न्यूजीलैंड ने 18 रन से
2019 में भी मैनचेस्टर में शिकस्त थी। और मैनचेस्टर में जब ये लास्ट गेम हो रही थी तो उस गेम को देखने के लिए वहां पर डेविड बैकम मौजूद थे। डेविड बैकम खुद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से सर एलेक्स फर्गूसन के अंडर क्लब फुटबॉल रियल मैड्रिड ज्वाइन करने से पहले खेल चुके हैं। ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, लेकिन जस्ट एक हमारा बड़ा सरप्राइज फैक्टर था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी भी और मैनचेस्टर भारत को रास नहीं आते। मैनचेस्टर का मैदान हो और भारत को न्यूजीलैंड का सामना करना पड़े तो वो रास नहीं आते। तो अब देखना ये है कि डेविड बैकम भारत तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब शुभ शुभ आए जी, शुभ शुभ कदम रखें, क्योंकि उन्होंने जो कदम रंजा फरमाए हैं, मैनचेस्टर का हार्ट कहा जाता है डेविड बैकम को। तो क्या टीम इंडिया की जो स्पिरिट्स है या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पेस और स्पिन, पेसर्स ने यहाँ पर 83% टोटल विकेट ली हुई है इस वेन्यू के ऊपर, जबकि कल का जो वेदर है वो बता रहा है, वेनखेड़े में हमें सामने मेरे नजर आ रहा है कि 28 डिग्री सेल्सियस है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है और 49% ह्यूमिडिटी होगी। देखते हैं कि इसको बॉलर्स जो है वो कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। जी, अबाउट द वेन्यू, फाइनल रिमार्क्स ऑफ रंगा जी एंड गुरप्रीत जी। 55 रन बनाए थे 357 चेस करते हुए, तो ये लो स्कोरिंग भी हो सकता है। मगर India has had a good time there. They played the World Cup finals there in 2011. They played Sri Lanka there earlier this tournament. They played pretty confidently. It's a ground that they like. It's a home ground for Rohit Sharma in the IPL. And it's also a ground where I'm sure they have fond memories of how things have happened. And I would think the pitch and other things will play the same for both teams. So to say that it suits one team more than the other is not fair. And whatever the pitch presents, both teams have to put the right foot forward and play this game out. Pitch के साथ चलें तो I think ground के साथ चलें, it's a beautiful place, it's a beautiful city, and I'm sure it's going to be a great game. And जहाँ तक David Beckham का सवाल है, I would now associate him more with a major league soccer team from the US. So मैं उसको भी इस वक्त अमेरिकन मान के चलूंगा, ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो शायद वो हाँ, वो आई थिंक कि डिफरेंस। वो लॉस एंजलिस गैलेक्सी से भी खेल चुके हैं, राइट? बिल्कुल, that was his last team that he played for. Yeah, last team we played for the Los Angeles Galaxies. And now he owns one of the teams that Lionel Messi plays for. So जी, हमजा काफी देर से खामोश बैठे हैं। हमजा कुछ इनपुट डालें, कुछ जाग जाएं, कुछ करें कुछ। आप लोगों की बातें एंजॉय कर रहा हूँ और अपने प्रोग्राम को अब इख्तिताम की तरफ भी लेके चलूँगा और इसके बाद जो है सबका एक-एक लास्ट पॉइंट और प्रेडिक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे हम और उसके आखिर में मैं फिर प्रेडिक्शन दूँगा। लेट्स स्टार्ट विद रंगा जी, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? करना है, फिर हमने प्रेडिक्शन करनी है और उसके बाद हमने फिर पैनल्स पिक करनी है। हमने कल के मैच के लिए 5 प्लेयर उठाने हैं। वो पांचों प्लेयर एक ही टीम के हो सकते हैं या दोनों के हो सकते हैं। सो द फेयर चांस शुड बी गिवन और हर कंटेस्टेंट जो है वो 5 पिक करेगा अपने की प्लेयर टू सक्सेस कल के मैच के लिए। किसी एक टीम से 3 हो सकते हैं, किसी एक टीम से 2 हो सकते हैं। एक प्लेयर आधा-आधा नहीं हो सकता। okay. So I'll go with the picks first. I would say Shubman Gill. It's a little tough to stop at 5. 6 पिक कर सकते हैं, 3-3। नहीं, 5 ये छोड़ करें, 5 कर दिया है। गुरप्रीत जी और मैं और हमजा हम लोग सिर्फ 4 करते थे पिक, 2+2। चलो ठीक है, तो फिर I'll और go बड़ा with मैच है, हमने 5 की इजाजत दी है। चलिए, तो I will go with Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah for India, and Kane Williamson and Rachin Ravindra for New Zealand. जी गुरप्रीत जी। हाँ जी, बिल्कुल पिक्स की बात पहले हुई है तो आई विल स्टिक विद माय प्रिंस शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह एंड जडेजा, एंड फ्रॉम द अपोजिंग टीम न्यूजीलैंड की तरफ से इट विल बी डैरल मिचेल एज वेल एज डेवन कॉनवे। जी, और मैं अपनी पिक बता देता हूँ, उसके बाद हमजा अपनी पिक पे आएंगे। मुझे जो पिक करना है, जडेजा, भारत से जसप्रीत बुमराह, रचिन, ट्रेंट बोल्ट, डेविन कॉनवे।
बता देता हूँ कि आई एम आइंग विराट कोहली, द किंग कोहली, जिसको वसीम अकरम अब कह चुका है कि किंग हटा के एम्परर कर देना चाहिए। एम्परर कोहली। और बॉलिंग में आई थिंक मोहम्मद शामी इज़ राइट ऑन पीक एट द मोमेंट। वो उसको इस वक़्त उससे ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि जो कुछ गलत हो, उससे तो वाइड बॉल भी गलत नहीं हो रहा। सो आई थिंक मोहम्मद शामी, द मच इम्पोर्टेंट फैक्टर इज, as I'm always a all-rounder myself and I love all-rounders. So Jadeja, and from New Zealand side, I think Rachin Ravindra and Trent Bolt would make a huge total. पाँच 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 ही करें, 3 इंडिया से, 2 न्यूजीलैंड से। कुलदीप को नहीं उठाया। जी। चले तो क्या एनी मुझे हो आप जी। छठा बोल देते जी। तो यहाँ वहाँ उठा लेते तो नहीं, मुझे लग रहा है कि टुमारोज गेम में हमारा जो स्पिन अटैक है ना, उसके ऊपर डैरल मिचेल, टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स कैसे बैटिंग करेगी, दैट कैन आल्सो डिफाइन। जो आपने बोला था ना कि उसमें कैसे हो सकता है कि की फैक्टर्स, तो जो उनका मिडल ऑर्डर है, हाउ दे प्ले अवर स्पिन बॉलिंग अटैक, दैट कैन आल्सो डिफाइन द गेम बिकॉज दे ऑल थ्री प्ले स्पिन अटैक वेरी वेल। वेरी वेल। गुड गुड, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमजा, मेरा ख्याल है प्रोग्राम को एंड करने से पहले, टेबल चलने पे पहले किलर फैक्टर मेरा ख्याल है हो जाए, ताकि यहां से हम किलर फैक्टर को वाइंड अप करें। जी, तो टाइम हुआ है जी अमेजिंग किलर फैक्टर का, जो आपके लिए मैं लेके आया हूं आज। और किलर फैक्टर मींस 911। 911 रंगा जी नहीं जानते होंगे, लेकिन गुरप्रीत जी और हमजा बखूबी वाकिफ हैं कि किलर फैक्टर 911 का मतलब है कि इमरजेंसी इन नॉर्थ अमेरिका। 911 are the Virat Kohli scores in the 3 ODI semi-finals he played. विराट कोहली ने 3 सेमीफाइनल खेले और विराट कोहली का पहले सेमीफाइनल का स्कोर 9 था, जबकि दूसरे सेमीफाइनल का स्कोर 1 था और तीसरे का 1 था। तो ये मिला के बने 911। जब विराट कोहली नॉकआउट के अंदर 911 में आए तो समझ जाएं कि ये भारत के लिए एक इमरजेंसी है। And in this, he played 0 boundaries. विराट कोहली, जिनको हम किंग कोहली कहते हैं, he is unable to score a single boundary in a cricket World Cup knockout game. और रोहित शर्मा, जिनके ऊपर भारत की टीम डिपेंड कर रही है और जिनको हिटमैन कहा जाता है, उनका मैक्सिमम स्कोर नॉकआउट के अंदर 34 और 1 है। भारत के रो और को रोहित शर्मा और विराट कोहली आज तक नॉकआउट गेम्स में 50 रन्स बनाने में कामयाब नहीं हुए। जो सबसे अलार्मिंग 911 इमरजेंसी है भारत के लिए इस किलर फैक्टर में, द स्कोर्स ऑफ इंडियाज करंट बैटर्स इन द ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स: कोहली 911, जडेजा 1677, रोहित 34-1, केएल राहुल 1, अश्विन 5, शामी 1। ये सबसे अलार्मिंग चीज है, जो कि है आज का किलर फैक्टर। जी हमजा। डेंजरस किलर फैक्टर बता दिया है। इसके बाद हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे व्यूअर्स इस वक्त स्टन हो चुके हैं कि ये इतने बड़े और अमेजिंग स्टैट्स आपने कहाँ से डिग आउट किए हैं। इसके बारे में हम आपसे तफसीलात बाद में लेंगे। इस वक्त चलते हैं अपनी प्रेडिक्शन की तरफ और रंगा जी से स्टार्ट करेंगे टू रैप अप द गेम। योर प्रेडिक्शन, और अगर आप कोई अपना कीज टू सक्सेस इंडिया या न्यूजीलैंड दोनों के लिए शेयर करना चाहें तो। पहली बात तो ये, जो प्रेडिक्शन सोच के चल रहा था वो अभी डॉक्टर अदनान ने काफी उसको डगमगा दिया है। मगर those are scary numbers for knockouts, but I would still go with they have responded to the emergency. I'm sure they are also aware of these numbers. हमारे पास statisticians की कमी नहीं है इंडिया में और इंडियन टीम में। I'm sure they're aware of these numbers, and what we've seen over the last 9 games is an answer to that emergency. तो आप शायद उसी वेन में उनको परफॉर्म करता देखेंगे। सो आई वुड गो विद 60-40 टू इंडिया। And key success factors, if I were to plug all of your picks together, it is a good start with the bat if we are batting first, or a great start with the ball if we're bowling first. In the end, it's about getting those early wickets or getting those early runs
and getting off to a good start. That'll define how this goes, because Wankhede will help you if you put trust in that wicket and spend some time. It will help you score. So the key is to get someone out quickly to try and put pressure on the ones coming after. जी बिल्कुल, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका फैक्टर जो है आपने पूछा है, तो किस्मत पे मैं छोड़ता हूँ। इट्स अ वन ऑफ अ गेम, तो किस्मत इसमें बिग रोल प्ले करेगी। उसका रीज़न ये है कि सचिन रविंद्रा की, जिसकी हम सारे पैनल में बात कर रहे हैं, सारी दुनिया में बात कर रहे हैं, अगर विलियमसन को इंजरी नहीं होती तो आपको वो देखने को भी नहीं मिलता। उनका फर्स्ट पिक यंग था एज एन ओपनर, और इसको मेक शिफ्ट बनाया गया था क्योंकि विलियमसन इंजर्ड हो गया। तो किस्मत प्लेज अ बिग रोल। कहीं भी आप चले जाएं, तो जिस टीम की आज किस्मत भी साथ में होगी अलॉन्ग विद द स्किल सेट, वो बाजी मार जाएगी, बिकॉज इट्स अ वन ऑफ गेम। यू कैन हैव अ वन इनिंग लाइक ग्लेन मैक्सवेल और impactful inning where somebody comes and scores 40 run in 10 balls or 15 balls and the game changes wide open. So मुझे लगता है कि I will play safe bet 50-50, दोनों टीमों को इवन चांस है क्योंकि it's a semi-final and the way the both teams have played, 10 मैच खेले हैं, न्यूजीलैंड 5 बार जीती है, इंडिया 4 बार जीता है, एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं हुआ है, तो I stick to 50-50, both teams have a fair chance tomorrow. गुरप्रीत जी, आप कौन सी राइटिंग से इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं सर मैं। I don't want to jinx any team. जी डॉक्टर अदनान। जी, 51-49 to New Zealand. I go for the stats. I love digging numbers. 51 to New Zealand and 49 to India. लेकिन इंडिया को मैं 49 से कम नंबर देने की जरूरत नहीं कर सकता। इंडिया आर प्लेइंग सुपर क्रिकेट, 9 in a row. They are playing in the home, they are in the amazing run. और अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता है, दे विल बी द फर्स्ट टीम आफ्टर टीम ऑस्ट्रेलिया जो अपने तमाम गेम्स जीतने के बाद वर्ल्ड कप उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम हैज डन इट ट्वाइस in the World Cup 2003 and 2007 without losing a single game. The Ricky Ponting's amazing Australia. So just fingers crossed that can Team India can match the legacy of the Ricky Ponting's team Australia. और यही बताना चलूँ आपको कि हमजा की तरफ ओवर देने से पहले कि 2015 और 2023 जो 2 वर्ल्ड कप थे, जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप और ये are having the same 4 teams in the semi-finals. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। सिर्फ फर्क क्या आ गया है कि उनके झटके डिफरेंट जगहों पे पड़ गए हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि वो खुशकिस्मत झटके हैं या बदकिस्मत झटके हैं। भारत का झटका ऑस्ट्रेलिया से पड़ा था और न्यूजीलैंड का झटका साउथ अफ्रीका से पड़ा था। तो ये सेम सेट है लेकिन ओपोनेंट्स डिफरेंट है। और इसके अलावा मेरे पास एक और थोड़ी मिथोलॉजी है कि जो 4 वर्ल्ड कप एशियन टीम्स ने होस्ट किए हैं अभी तक, पहला वर्ल्ड कप जब बरसगीर में आया था, इंग्लैंड से बाहर निकला था प्रूडेंशियल कप, तो रिलायंस कप के नाम से पाकिस्तान और भारत ने मिलके वो वर्ल्ड कप कराया था। तो मैं काफी छोटा था, लेकिन रंगा जी ने तो ये कहा था उनको याद ही नहीं है वो वर्ल्ड कप, लेकिन मैं कहता हूँ मैं छोटा छोटा था उस वक्त। तो वो जो वर्ल्ड कप था 1987 का, 87 का वर्ल्ड कप, दैट वाज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। This World Cup is the first and the only World Cup जहां पर एक एशियन टीम सेमीफाइनल में है। इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। 87 में भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, 96 में श्रीलंका और भारत सेमीफाइनल तक पहुंचे, और 2011 में 3 एशियंस पहुंचे, तीनों बिग गन्स पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो ये पहला वर्ल्ड कप होगा एशिया के अंदर कि जहां पर 3 नॉन एशियन टीम्स वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स खेल रही है। जी हमजा। आप सबका और बड़े अच्छे स्टैट्स और बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन। माय प्रेडिक्शन, आई केम विद माय माइंड एंड आई वाज टॉकिंग ऑफ कैमरा विद माय पार्टिसिपेंट्स के 60-40 इंडिया को इंडिया के अंदर हराना इट्स इम्पॉसिबल। आफ्टर लिसनिंग टू द लास्ट किलर फैक्टर मुझे इतना डर लग रहा है, अब मुझे नींद नहीं आएगी थोड़ी देर तक कि ये होने क्या वाला है। सो माय प्रेडिक्शन स्टिल not moved towards New Zealand too much, but 55 to India, 45 to New Zealand. शेर को शेर की हैबिटेट में हराना, इंग्लैंड इंडिया को इंडिया में हराना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। प्लस रन ऑफ प्ले,
New Zealand has a run of play after even got beaten by Pakistan, but they still managed to get through to semi-final. लेकिन जो run of play इंडिया के पास है, जिस पीक पे इंडिया है, जिस तरह बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया है रंगा ने कि जिस तरह कोहेसिव यूनिट वो इस वक्त खेल रहे हैं, हर पुर्जा वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे उसकी तमन्ना की जाती है। So hopefully both team will give excellent cricket to watch. I hope it will go to a nail biter finish. So we enjoy a thorough semi-final before moving to Australia versus South Africa. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ फ़ेसबुक और यूट्यूब पे बहुत से लोग जुड़े रहे। उनका सबका शुक्रिया कि वो हमें सुन रहे हैं और एन6 टीवी पे इस वक़्त जो लाइव हमें देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ट्यून इन किया। हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे पैनलिस्ट से उन्होंने फ़ायदा उठाया। कीप वॉचिंग एन6। वी विल सी यू टुमारो आफ्टर द India New Zealand post match analysis and pre match to Australia versus South Africa. Keep watching N6. Me and my team, Dr. Adnan, Gurpreet Purba, and Rangaji signing off from N6. Thank you very much.